स्थिरानंद करी विभाता बुद्ध्य करी नमामि तारे। I salute the motherland who bestows happiness to us, the one who brings prosperity. I bow to the Savior. Ladies and gentlemen, my name is Priyanka Kumari and I am from Gaya College, B.Ed department. Today as we gather here, I want to take you to a time when the mountains echoed to the enormous spirit of courage. The valleys witnessed firm determination and the skies demonstrated to the wings of heroes. Yes, I am talking about the historic chapter in our nation's history, Kargil Divas. It was a day when the brave soldier displayed resilience and courage to protect the motherland. It was a time when the enemy forces infiltrated into the country to enter into the Kargil region of Jammu and Kashmir. The brave soldiers fought tirelessly and selflessly to protect the mother nation. Their commitment and sense of duty inspire us even today. 26 July marks the anniversary of the successful completion of Operation Vijay in 1999. I would like to quote one of the brave and determined soldiers who once said that, "If death strike me before I die, before I prove my blood, I swear I'll kill death." This is what late Manoj Kumar Pandey, recipient of Paramveer Chakra, wrote in bold letters in his personal diary during the Kargil conflict. Also late Vikram Batra said about Ye Dil Mange More, which is very rightly said. Along with that, we should pay regards to the families of these brave soldiers whose support were commendable, and this operation couldn't have been successful without their support. Along with that, the Indian Air Force and the other units played a very crucial role in the operation. In conclusion, as we observe 24th Kargil Divas, let us reunite and make commitment to ourselves to make the nation work towards the progress, peace and prosperity. Let us pay tribute to the brave soldiers who displayed courage, resilience and sacrifice. We should also imbibe the patriotism and sacrifice which they taught us. Let the spirit of Kargil Divas continue to burn in us. होती है चमन बुलबुले कुर्बान वतन के वास्ते, क्या हुआ अगर मर गए वतन के वास्ते। जय हिंद, जय भारत। तूफान लिए फिरते हैं, आसमां से ऊंची उड़ान लिए फिरते हैं, और वक्त क्या बताएगा हमारे जोश और जुनून को। अरे हम तो हथेली पर अपनी जान लिए फिरते हैं। आप सभी का इस सभागार में स्वागत करता हूं और साथ ही धन्यवाद भी करता हूं जो मुझे कारगिल विजय दिवस पर अपने विचारों को रखने का मौका मिला। कारगिल विजय दिवस में हमारे सैनिकों के समूह ने कई ऑपरेशन किए, जैसे थल सेना ने ऑपरेशन विजय और वायु सेना ने ऑपरेशन सफेद सागर, हमारी नौसेना ने ऑपरेशन तलवार चलाए। 1998 में भारत और पाकिस्तान दो परमाणु संपन्न देश हुए। जब दो परमाणु संपन्न देशों के बीच यदि युद्ध होता है तो यह युद्ध काफी घातक हो सकता है। काफी दूरदर्शी सोच रखने वाले हमारे प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी 21 फरवरी 1999 को दिल्ली से लाहौर बस से रवाना हुए और एक लाहौर समझौता पर हस्ताक्षर हुआ। लाहौर समझौता क्या था? लाहौर समझौता यह था कि कश्मीर के मुद्दे को बिना किसी तीसरे देश के हस्तक्षेप किए बिना उसको हल करना। जब हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बस से उतरे थे तो उनको काफी गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया था और उनको 21 तोपों की सलामी दिया गया था। लेकिन कोई नहीं जानता था कि ठीक 3 महीने बाद यही 21 तोपों की सलामी हमारे सैनिकों पर गिरेगी। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान में थे तो उनको पाकिस्तान के जनरल परवेज मुशर्रफ उन्हें सैल्यूट करने से मना कर रहे। अरे जाओ, तुम क्या सैल्यूट नहीं करोगे हमारे देश के? अरे तुम सीखो हमसे कैसे पूरी दुनिया हमारा गुणगान करती है, वसुधैव कुटुंबकम और अतिथि देवो भव का। परवेज मुशर्रफ ने ऑपरेशन अलबद्र का प्लान बनाया था। ऐसा माना जाता है कि यह ऑपरेशन अलबद्र को जावेद हसन ने तैयार किया था। कारगिल युद्ध से पहले 1971 में भारत और पाकिस्तान में युद्ध हुआ, जिसने हमारी भारतीय सेना ने
उन पाकिस्तानों को उनकी औकात दिखा दिया। और तब 2 जुलाई 1972 को भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला में एक शिमला समझौता हुआ और इस शिमला समझौता में दोनों देशों ने यह फैसला लिया कि कारगिल में -30 डिग्री से 40 डिग्री तापमान हो जाने के कारण दोनों देश की सेनाएं अपने अपनी सैनिकों को वापस बुला लेगी और मई के महीने में वहां जाकर बंकर बना लेगी। ऑपरेशन अलबद्र यह था कि 1999 में जब भारतीय सेना पीछे हटेगी तो पाकिस्तान की सेना पीछे नहीं हटेगी और जिन भारतीय बंकरों को भारत छोड़ के जाएगी उन भारतीय बंकर में पाकिस्तान की सेना को घुसा दिया जाएगा और उन्हें काफी हथियार सौंप दिया जाएगा। कारगिल, यह लड़ाई कारगिल के जिले में थी, जिस कारण इसका नाम कारगिल पड़ा। कारगिल नियंत्रण रेखा के पास थी, नियंत्रण रेखा के पास से शिमला, नियंत्रण रेखा के पास से श्रीनगर से पास से रेखा के पास से श्रीनगर से ले तक एक राष्ट्रीय राजमार्ग जाता है। पाकिस्तान का योजना यह था कि यह राजमार्ग को काट देना ताकि भारत के हाथ से सियाचिन निकल जाए और कोई भारतीय सियाचिन ना पहुंच सके। पाकिस्तान की योजना यह भी थी कि ये भारत के 4 जगहों में घुसे थे जो कि कारगिल के भागों में थी, जो कि मस्को, द्रास, कास्कर, बटालिक। सबसे भीषण लड़ाई द्रास वाले क्षेत्र में हुआ था क्योंकि यहीं पर .5410, .4910 टाइगर हिल और तोलोलिंग था। कास्कर वाले क्षेत्र को इन्होंने बैकअप के लिए यूज किया था और बटाली वाले क्षेत्र को इन्होंने अंतिम क्षेत्र था क्योंकि उनका कहना था कि अगर बटाली वाला क्षेत्र पर कब्जा हो जाएगा तो भारत के हाथ से सियाचिन निकल जाएगा। यह एक कारगिल एक पहाड़ी क्षेत्र था, यहाँ पर कोई भी इंडस्ट्री का एरिया नहीं था, यहाँ पर सबसे ज्यादा पशुपालन होता था और पहाड़ों पर एक याक नाम का जानवर होता है। दयाल नाम का एक मधेशी जिनका याक हो गया था, वो अपने याक को खोजते खोजते पहाड़ों पर कुछ हलचल देखा और 2 मई को उन्होंने भारतीय सैनिकों को सूचना दिया। 5 मई को 4 से 5 सैनिकों की टुकड़ी को पेट्रोलिंग पर पहाड़ों पर भेजा गया, लेकिन पेट्रोलिंग के दौरान उन सैनिकों को पाकिस्तानियों ने मार दिया। 9 मई को डायरेक्ट कारगिल पर हमला हो गया और भारत के एम्युनिशन डिपो पर एक बम का गोला गिर जाने से भारत को 127 करोड़ का नुकसान हो गया। भारत को यह लग रहा था कि मामले घुसपैठिए आतंकवादी हैं, पर धीरे धीरे पता चल गया था कि मामले घुसपैठिए आतंकवादी हैं। जो आतंकवादी हैं ये पाकिस्तान की सेना है जो कि नॉर्दर्न इन्फेंट्री के जवान से। दरअसल ऐसा माना जाता है कि जब आप हमला करने जाते हो तो आपकी फौज 3 गुनी होनी चाहिए क्योंकि वहां पर पहले ही से ही दुश्मन बैठा हुआ है। लेकिन पहाड़ों पर की लड़ाई आसान नहीं है क्योंकि वहां मैदानी क्षेत्र की तरह दौड़ नहीं सकते और आपकी फौज 9 गुनी होनी चाहिए। 19 जुलाई को ऑपरेशन विजय शुरू किया। ऑफिशियली इसी दिन से विजय कारगिल युद्ध शुरू हुआ और तोलोलिंग वाले क्षेत्र से हमारे फौज को भेजा गया और डायरेक्ट पाकिस्तान टाइगर हिल से डायरेक्ट तोलोलिंग पर हमला कर रहा था। इससे आप समझ सकते हैं कि पहाड़ों की लड़ाई में ऊंचाई का कितना बड़ा लाभदायक हो सकता है। भारतीय सेना ने